اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 سے درس آج کا شروع ہے۔ گزشتہ مرتبہ پچھلی مرتبہ بھی یہی آیت تھی جس سے ہم نے اپنا درس ختم کیا تھا۔ اس کے روح کیا ہے، وہ تم سے روح کا سوال کرتے ہیں، ان سے کہو کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے۔ اور ایک اور ترجمہ ہوتا ہے آیت کے حصے کا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بہت کم لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ دونوں ترجمے عام طور سے جو ترجموں میں لکھا ہوتا ہے وہ صرف یہ لیا جاتا ہے کہ اس کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا ہے، یہ بھی درست ہے، اور دوسرا یہ ترجمہ یہ بھی درست ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ یعنی ہم دونوں ترجموں کو کنسیڈر کریں تو یہ ہوگا کہ روح کا علم بہت کم تعداد ہے دنیا میں جن کے پاس ہے، اور اکثریت تو وہ ہے جسے بہت ہی کم ہے علم، بہت کم لوگ ہیں جنہیں علم ہے، اور ان کا علم بھی مکمل نہیں ہوگا روح کے بارے میں۔ لفظ امر جو اس میں آیا من امر ربی، اس کے لیے کوئی ایکویویلنٹ یا متبادل لفظ کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ عام طور سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں حکم، کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ میرا روح میرے رب کے امر سے ہے، میرے رب کے حکم سے ہے۔ حکم لفظ سے اس کا ترجمہ، اس کا سینس لفظ امر کا پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے جو کریشن ہوتی ہے، جو تخلیق ہوتی ہے، وہ پہلے عالم امر میں ہوتی ہے، اس کے بعد عالم خلق میں ہوتی ہے۔ عالم امر وہ حصہ ہے جس کی چیزیں یہاں دنیا والے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ دنیا والے صرف ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کا ان کو تجربہ ہو، اور جن کو وہ فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ قرآن شریف نے بیان کیا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنے ایک بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ کے لیے بھیجا، تربیت کے لیے، وہ عالم امر کی ٹریننگ دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ علم عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، تو نبی کو عالم امر کی ٹریننگ دینے کے لیے آئے تھے۔ عالم خلق میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ تو لوگ دیکھ رہے تھے، حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے، اور اس پر وہ صبر نہیں کر پا رہے تھے اور برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور بار بار ٹوک رہے تھے کہ یہ کیا کیا آپ نے۔ طے یہ ہوا تھا کہ سوال نہیں کریں گے، اس شرط پر وہ ساتھ چلے تھے، لیکن ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ان چیزوں کو کیسے برداشت کریں جو وہاں سامنے ظہور میں آ رہے ہیں۔ وہ عالم خلق میں تھے، عالم امر میں کچھ اور تھا اس کے پیچھے۔ تو وہ جو کچھ عالم امر میں ہو رہا تھا وہ جب ٹرانسلیٹ ہوتا تھا یا جب کنورٹ ہوتا تھا عالم خلق میں، تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ وعدہ کرنے کے باوجود وہ بے اختیار سوال کر بیٹھتے تھے۔
आलम अम्र में एक फैसला हुआ कि एक बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए उसकी जिंदगी को। हजरत मूसा को वो आलम अम्र भी उस वक्त दिखाया जा रहा था। और फिर यहां आलम खल्क में ये हुआ कि वो बच्चा किसी तरीके से मर गया, उसके कुछ भी असबाब बने होंगे, चाहे कहीं से गिर गया हो, चाहे किसी ने उसे मार दिया हो, लेकिन क्योंकि हजरत मूसा को ये विजन दी गई थी उस वक्त कि आलम अम्र को भी वो देख सकें, तो वो ये देख रहे थे कि ये जो साथ में हैं उनके, जिनका नाम हजरत खिज़र मशहूर है, ये जो साथ में है, असल में इन्होंने वो असबाब फराम किए, वो मीन फराम किए जिसकी वजह से ये बच्चा मर गया। तो इसलिए वो इल्जाम देते थे उनको कि ये क्यों किया, इसे क्यों मार दिया। आलम खल्क में ऐसा नहीं हो रहा था कि वो शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और नबी को वो शरीयत की खिलाफ वर्जी की ट्रेनिंग देने के लिए आए। कश्ती मसलन किसी चट्टान से टकरा के टूट गई हो, डिफेक्टिव हो गई हो, ये तो हुआ आलम खल्क में। आलम अम्र में ये फैसला हुआ था कि ये कश्ती डिफेक्टिव हो जाए, और उसके लिए जो मीन्स और असबाब, जो कारण जगत के अंदर जो चीजें आए सामने, वो क्योंकि उनको हरकत दिया था या मूव किया था या इनिशिएट किया था हजरत खिज़र ने, तो हजरत मूसा ने उन्हें इल्जाम दिया कि कश्ती क्यों तोड़ दी। वो शरीयत के खिलाफ नबी को कुछ सिखाने नहीं आए, साहब शरीयत नबी को। कश्ती यहां पर दूसरे असबाब से टूट गई, लेकिन आलम अम्र में जो कुछ फैसला था उसके लिए उन्होंने कारण जगत या आलम असबाब या सबब को उन्होंने हरकत दिया था, तो वो कश्ती डिफेक्टिव हो गई। उन्होंने एक्यूज किया या उनसे कहा कि आपने कश्ती क्यों तोड़ दी। एक आर्किटेक्ट नक्शा बनाकर देता है, जब उससे आप नक्शे बनवाते हैं, उसने जब वो पेपर पर आपको मैप बनाकर दिया, वो उस वक्त पहली दफा नहीं बना। जब कागज पर उसने कुछ उतारा और कुछ चेंजेस किए, उस वक्त वो पहली दफा नहीं बन रहा था वो नक्शा। पेपर पर जब उसने कोई ट्रायल भी स्टार्ट किया, उससे बहुत पहले उसके जहन में नक्शे बन रहे थे और बिगड़ रहे थे, काफी पहले। उसके बाद फिर वो सामने आया नक्शा ऑन पेपर। जब वो ऑन पेपर आया तो हमने देखा, जिस वक्त उसके जहन में बन रहे थे हमने नहीं देखा। ये इसकी मिसाल है आलम अम्र कि अल्लाह की तरफ से वो फैसले जो हमें नजर नहीं आते, उसके असबाब बनते हैं, और फिर वो आलम खल्क में इस क्रिएशन के जगत में वो हमें नजर आते हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं। ये है कि कह दो कि रूह एक ऐसा अम्र है कि रूह जो है उसका ताल्लुक ये फरमाया कि आलम अम्र से, मेरे रब के अम्र में से है, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगा। इसका इल्म बहुत कम दिया गया है और बहुत कम लोगों को दिया गया है, इसलिए कि ये इसका ताल्लुक आलम अम्र से। नबी पर वही नाजिल हुई, नबी ने हमें वो तालीम दे दी, अल्लाह का कलाम डिलीवर कर दिया। ये आलम खल्क है। उस वही के नाजिल होने की कैफियत क्या थी, कल्ब पर कैसे नाजिल हुई, वो असल कैफियत क्या थी, इसे हम नहीं जानते। ये आलम अम्र की बात है, इसको न फील कर सकता है कोई दुनिया का इंसान, न समझ सकता है। तो ये फरमाया कि ये रूह भी मेरे रब के आलम अम्र से ताल्लुक रखती है, इसलिए इसका इल्म तुम्हें होगा तो बहुत थोड़ा होगा और बहुत कम लोगों को होगा।
रूह के बारे में सूरह नहल में बहुत तफसील से मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, डिटेल। 2 आयात में दिख रहा है सूरह नहल, इससे पिछली ही सूरत, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 2 में बहुत तफसील से वहां रूह का जिक्र था। तो बहुत सी तफसीलात मैंने बयान की थी सूरह नहल की आयत नंबर 2 की तफसीर में, और बहुत सी तफसीलात बयान की थी सूरह नहल की आयत नंबर 102 की तफसीर में। वहां फिर रूह का जिक्र आया सूरह के शुरू में और सूरह के खत्म के करीब। बहरहाल यहां पे क्योंकि रूह का जिक्र आया, रिमाइंडर के लिए भी लोगों को याद नहीं रहता, और इसलिए भी कि दर्स में लोग नए आते रहते हैं, तो इसलिए कुछ तफसीलात इस वक्त में फिर रखनी जरूरी है। इससे पहले इस मौजू को समझना जरूरी, वरना रूह समझ में नहीं आएगी कि नफ्स और रूह ये दोनों एक चीजें नहीं है, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी समझती है, अजीम अक्सरियत जो समझती है। इंसान का एक जिस्म और एक रूह है, बस। रूह निकल गई, मर गया, रूह आ गई, जिंदा हो गया। रूह किस स्टेज पर आई, इसमें कब जिंदा हुआ? रहम मादर में, मां के पेट में किस वक्त जिंदा हुआ? रूह कब आई? अगर खाली एक जिस्म था जिसमें रूह आती है और जिंदा हो जाता है। स्पर्म या नुत्फा जब रहम मादर में दाखिल हुआ तो वो जिंदा था, लिविंग थिंग था। अभी तो दाखिल हुआ था, उस वक्त भी वो लिविंग थिंग था, दाखिल होने से पहले भी लिविंग थिंग था और जिंदा था। आज तो माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं और देख सकते हैं। वो जब एग्स फर्टिलाइज हुए रहम मादर में, तो भी वो जिंदा था। और जब उसने ग्रो करना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, ओवरी के अंदर, ओवरी की बॉल से स्टिक किए हुए, चिपके हुए, जैसे मुअल्लका कहा है कुरान, उस वक्त भी जिंदा था। जिंदा चीजें ग्रो करती हैं वक्त, नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ती नहीं है, ग्रो नहीं करती, डाइट नहीं लेती बाहर से, उसको ग़िज़ा मिल रही। तो हर स्टेज पर लिविंग थिंग था, जान तो हर स्टेज पर थी। तो फिर हम क्या कहें कि किसी स्टेज के ऊपर रूह आई, रूह आई तो जिंदा हो गया। वो तो मां के पेट में जो सबसे पहली फॉर्मेशन थी फर्टिलाइजेशन के बाद, वो उस वक्त भी लिविंग थिंग थी, एक जानदार शय। लेकिन जानदार चीज ही कह सकते हैं हम, शय, इंसान नहीं था। वो जानदार शय या लिविंग थिंग ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी, वो लिविंग थिंग थी, जानदार शय, इंसान नहीं था वो। एक स्टेज आई जब इंसान हो गया। ये जो माना जाता है या कहा जाता है या समझा जाता है कि इंसान का एक जिस्म है, तो रूह है, जब रूह आती है तो जान आती है, तब वो जानदार हो जाता है। तो रूह उसमें कब आई? क्या रूह शुरू से चल रही थी या किसी खास स्टेज पर आई? किसी खास स्टेज पर आई तो उससे पहले वो जानदार शय कैसे था? ये तो मैंने आपको बताया उन चीजों के हवाले से जिन्हें आप जानते हैं। हमारे यहां कुरान शरीफ में लफ्ज आता है नफ्स, और इसका तर्जुमा या मफहूम समझा जाता है रूह। बड़ी अक्सरियत तर्जुमा या मफहूम इसका रूह समझती। लफ्ज रूह की जमा या प्लूरल, बहुवचन कुरान शरीफ में नहीं आया। जैसे हम अपनी जबान बोलते हैं अरवाह, कहते हैं आलम अरवाह में बहुत सी रूहें थी। कुरान शरीफ में लफ्ज अरवाह नहीं आया, रूह की जमा।
रूह हमेशा सिंगुलर, एक वचन वाहिद में इस्तेमाल हुआ रूह लफ्ज। नफ्स लफ्ज की जमा है अनफुस। बहुत है कुरान शरीफ, बहुत सी जगहों पर, और हर जगह अच्छा बुरा अमल करने का ताल्लुक नफ्स से है। नफ्स अच्छा करता है, नफ्स बुरा करता है। हर नफ्स को उसके किए की सजा मिलेगी या जजा मिलेगी, अच्छा बदला मिलेगा। उसको कहीं नहीं आया कि रूह को बदला दिया जाएगा। नफ्स को न जो कुछ भी सजा या जजा होती है, सुख या सुख, वो सब उसका ताल्लुक कुरान नफ्स से। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, यानी कि रूह को मौत का मजा चखना है। तो जिसे हमारे यहाँ रूह समझा जाता है या रूह कहा जाता है, वो असल में कुरान ने उसके लिए नफ्स लफ्ज इस्तेमाल किया है। उसकी जगह है अनफुस, हर एक के अलग अलग नफ्स। और नफ्स का आप सिंपल तर्जुमा या सिंपल सेंस समझ लें, तर्जुमा तो नहीं है उसका ये, लेकिन सिंपल सेंस समझ लें, जान या प्राण। ये जान, ये तो नफ्स हो गई। तो हर जान अलग अलग है। पेड़ पौधे अलग जीव हैं, जानवर अलग जीव हैं, इंसान अलग जीव है, और हर इंसान में हर इंसान, हर आदमी अलग अलग जीव है। लेकिन रूह के लिए प्लूरल नहीं आया। तो ये चूंकि जानदार के लिए या हर जान के लिए या हर एंटिटी या हर इकाई, हर एक अलग जानदार शय के लिए, हर जीव के लिए चूंकि नफ्स लफ्ज इस्तेमाल हुआ कुरान में, और कॉन्सेप्ट ऑफ तसव्वुर लोगों का ये रहा कि एक रूह होती है, जिस्म होता है, तो इसलिए उस लफ्ज को रूह समझ लिया गया। ये दो अलग अलग लफ्ज है। कुरान में कहीं नफ्स इस्तेमाल किया, कहीं रूह इस्तेमाल किया। कुरान ने जिन जगहों पर लफ्ज रूह इस्तेमाल किया है वो इन मानों में नहीं है जिसे हम रूह समझते हैं, कुछ और है जहां लफ्ज रूह इस्तेमाल किया है। जिसे हम समझते हैं ये इन सब जगहों पर नफ्स इस्तेमाल किया जान, और जहां रूह इस्तेमाल किया वो इस मानों में है नहीं जिसे हम जान समझते हैं। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, क़यामत के दिन रूह और मलाइका सब बातें खड़े होंगे। ये सब इंसानों की जिसे हम रूहें कहते हैं अलग अलग, वो नहीं है। ये रूह क्या है? शब कद्र में रूह का नुज़ूल होता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, मलाइका और रूह नाज़िल होते हैं इस रात में अपने रब के अम्र से, अपने रब के हुक्म से। तमाम जितने भी उमूर हैं जो आलम में हमने फैसले हुए हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनके निफाज के लिए मलाइका और रूह का नुज़ूल होता है शब कद्र में। ये रूह लफ्ज़ जहां जहां भी कुरान शरीफ में आ रहा है वो इस माने में नहीं आ रहा जैसे हम रूह समझ रहे हैं। ये दो अलग अलग फिर एंटिटीज। तो पहले जब तक इस मौजू को ठीक से नहीं समझ लेंगे, ये क्लियर नहीं होगा कि ये रूह और लफ्ज़ में जो कंफ्यूजन है, जो गड़बड़ हो गए एक बहुत बड़ी तादाद के जहन के अंदर, तब पहले इसे वाज़ेह तौर पे समझिए। ये दो आयात है बहुत साफ, बहुत स्पेसिफिक, बहुत वाज़ेह, जिनसे क्लियर होता है ये। इसमें इसके साथ ही साथ एक बात और समझें कि हम लफ्ज़ मौत बोलते हैं और लफ्ज़ वफात बोलते हैं, इन दोनों में फर्क है। हमारे यहाँ वफात मौत के मानों में बोला जाता है। वफात हो गई यानी मौत हो गई। मौत और वफात बिल्कुल सिनोनिम्स यानी हम माने लफ्ज़ नहीं है, इनमें फर्क है। तो पहले इसे समझना जरूरी, इसलिए कि मौत और वफात का रूह और नफ्स से ताल्लुक है। सूरह अनआम की आयत नंबर 60 ये आपके सामने है इस वक्त, 60। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, और वही है अल्लाह जो हर रात को तुम्हें वफात देता है, तुम सबको। हम वही अरबी वाला लफ्ज़ रखे हैं, कब्जे में ले लेता है तो छोड़िए। वही है जो तुम्हें रात तुम सबको
यतवफ़्फ़ाकुम, तुम सबको वफात देता है। अब तुम सबको कुरान कह रहा है कि रोज रात को वफात देता है अल्लाह। तो रोज रात को जब सबको वफात होती है और वफात और मौत अगर एक ही चीजें हो तो मौत से तो वापसी नहीं होती, फिर सुबह जिंदा कैसे होते हैं सारे लोग? और खाली इतना ही नहीं कि सुबह जिंदा होते, वो लोग भी तो जिंदा होते हैं जिसको कहा जा रहा है कि वफात देता है नींद की हालत। आगे दूसरी आयत है सूरह ज़ुमर, जहां साफ साफ आ गया नींद की हालत में कहा जा रहा है कि नींद में वफात होती है। वो यार मा जरा तुम नहा, दिन में जो कुछ तुम करते हो कर चुके हो उसे वो जानता है अल्लाह। तुम यबअसुकुम फीही, फिर तुम्हें इसी आलम में वापस भेजता है उस वफात से। लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, ताकि जो मुद्दत जो तुम्हारे लिए तय है वो पूरी हो जाए, ताकि उसकी मुद्दत पूरी हो जाए, पूरी की जा सके इस तुम्हारी, तो फिर वो मुद्दत पूरी कर दे, इसलिए फिर वापस भेजता है वो वफात को। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर एक दिन तुम्हें उसी की तरफ लौटना है, अब वापसी नहीं होगी। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम ताअलमून, और फिर तुम्हें इत्तला दे दी जाएगी कि तुम्हारे अमल क्या थे। तो ये रोज रात को वफात होती है और उस वफात से रोज वापसी होती है। वफात वो चीज है जिससे वापसी हो सकती है। देखिए और ज्यादा वाज़ेह होगा सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 39-42 अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा। अनफुस देखिए जमा है, तमाम नफ्सों को। अब यहां एक बात वाज़ेह हुई, वफात किसे होती है? तमाम नफ्सों को अल्लाह वफात देता है। ये तर्जुमे में जो है कि गिरफ्त कर लेता है हिंदी में, और उर्दू में मौत के वक्त कर लेता है, इसे छोड़ दीजिए। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा, अल्लाह वफात देता है। यतवफ़्फ़ा अनफुसा, ये नफ्स की जमा है, तमाम नफ्सों को, सारे नफ्सों को, यानी सारी जानों को अल्लाह वफात देता है। हिना मौतिहा, उनकी मौत के वक्त। मौत लफ्ज़ भी आ गया उसी में, साथ ही में, एक ही फिक्रे में, एक ही जुमले में मौत लफ्ज़ भी आ गया, वफात भी आ गया। तो ये एक ही चीजें नहीं है दोनों। हर शख्स की उसके मौत के वक्त वफात होती है। अल्लाह हर नफ्स को, हर जान को उसकी मौत के वक्त वफात देता है। ये बात क्या हुई? अगर वफात और मौत एक ही चीज होते, ये मौत के वक्त वफात देता है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और उनको भी वफात देता है। लम तमुत, जिनकी अभी मौत नहीं आई, उनकी भी होती है वफात। फी मनामिहा, वो होती है सोते में, उनकी नींद के वक्त। तो वफात कुरान ने कहा दो तरह की है। एक तो मौत के वक्त वफात हो जाती है, और उसके अलावा वफात हर एक की होती है नींद के वक्त। ये नींद के वक्त जो होती है उसके बारे में आगे कहा, युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, नींद के वक्त जिनकी वफात होती है, जिन लोगों पर नींद की हालत में मौत का फैसला हो चुका, उनको रोक लिया जाता है। कुछ लोगों की मौत दिन में होती है, कुछ की रात में, सोते में हो गई। तो सोते में अभी हुई तो थी वफात, लेकिन मौत का भी वक्त आ गया, तो उन्हें रोक लिया। वयुरसिलुल उखरा, और दूसरों को वापस भेज दिया, इला अजलिन मुसम्मा, जो उनकी मुद्दत है उस वक्त के लिए। इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं, आयात है उनके लिए जो तफक्कुर करते, गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए। सिर्फ इसी आयत पर अकेली गौर व फिक्र कर लेते तो लोगों की समझ में आ जाता कि वफात अलग चीज है, मौत अलग चीज है। अब वफात क्या है? लफ्जी मानों में कहते हैं विड्रॉ कर लेना, खींच लेना, ले लेना, यह है इसके लिटरल मीनिंग वफात की। हर एक की नींद की हालत में वफात होती है। किस चीज को ले लिया जाता है, कब्ज़ किया जाता है?
अनफुस, नफ्सों को। रूहों तो कोई लफ्ज ही नहीं है कुरान, तर्जुमा रूह कर लेते हैं। अब आप अलग अलग रखिए। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, उनकी भी वफात होती है जिनकी अभी मौत नहीं आई, नींद की हालत में वफात होती है। इससे पहले मैं वापस जा रहा हूं पिछली आयत जो भी सूरह नाम की, हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल-लैल, वही है जो तुम्हें रात में तुम सबको वफात देता है। और इसमें कहा सूरह ज़ुमर में कि उन सबकी भी वफात होती है, नींद की हालत में होती है, जिनकी अभी मौत नहीं आई है, यानी नींद की हालत में वफात होती है। वफात अगर मौत ही होती तो पहली बात तो ये मौत से वापसी कैसे हो रही है, और उससे ज्यादा सोचने की और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने से समझ में आ जाने वाली बात ये कि मौत आई कहां है, नींद की हालत में भी। वापसी की बात तो है, सिर्फ कॉन्शियसनेस, शऊर ही तो गया है, बाकी तो सारा सिस्टम और निजाम बॉडी का चल रहा है, दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, गुर्दे काम कर रहे हैं, फेफड़े काम कर रहे हैं। हद ये है कि दिमाग के, जिस्म के वो सारे हिस्से भी काम कर रहे हैं जो डिसीजन और फैसले इंसान के जिस्म के लिए ले रहे हैं। बाहर की दुनिया का शऊर नहीं बस, एक करवट थक गई तो करवट बदलवाई जा रही है, एक तरफ से लेटे लेटे थक गए, ऑर्डर आ रहा है वहां से बदलो तो साइड बदली, तो बाहर से थोड़ी कह रहे हैं। ये मरा कब था, हर मोमेंट पे, हर लम्हे जिंदा था। कुरान कह रहा वफात हो चुकी है, भेजा, फिर वापस भेजा जाता है सुबह, यानी जब आंख खुल गई तो वापस भेज दिया गया, जब तक सोया हुआ था वफात में था। और ये भी कहा कि उस वफात की हालत में, जो सोने की हालत में वफात है, यानी नफ्सों को ले लिया गया है, उस हालत में अगर मौत का वक्त उस हालत में आ गया, वो था मौत का वक्त, फिर रोक लिया जाता है। जिस नफ्स को कब्ज किया था या लिया था या विड्रॉ किया था, फिर उसे रोक लेते, मौत आ गई। सिर्फ इन दोनों आयात पर अगर गौर कर लिया होता अल्फाज के साथ में, और अपनी तरफ से तर्जुमा वफात का मौत नहीं कर लिया होता पहले से, तो ये बहुत सी बातें वाज़ेह हो जाती। इंसान मौत की हालत, इंसान नींद की हालत में मरता नहीं है, लेकिन वो वफात की हालत में होता है। फिर ये भी तो कहा कि मौत की हालत की, जब मौत होती है उस वक्त भी वफात होती है। अल्लाह वफात देता है तमाम नफ्सों को उनकी मौत के वक्त। आप जब ये कहा कि इसमें अल्लाह की आयत है उन लोगों के लिए तफक्कुर करते हैं, गौर और फिक्र करते हैं, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, समझ में आ जाएगा। वफात जो है, मौत उसका एक हिस्सा है, एक खास किस्म की वफात को मौत कहते हैं। हर मौत वफात होती है, हर वफात मौत नहीं होती, एक खास किस्म की वफात होती है मौत। ऐसी वफात जिससे वापसी नहीं हो वो तो होती है मौत, और ऐसी वफात जिससे वापसी हो जाती है वो मौत नहीं होती। वफात ये दोनों है। तो वफात वो भी है जिससे वापसी होती है, वफात वो भी है जिससे वापसी नहीं होती। जिस वफात से वापसी नहीं होती उसे मौत कहते हैं, और ये वफात और मौत नफ्सों को होती है। फिर वही बात आ गई जानों को। अगर इस नफ्स को रूह समझे और ये समझे कि इंसान का एक जिस्म है, उसमें एक रूह है और कुछ नहीं है, उस रूह से ही जिंदगी है। रूह आई थी तो जिंदा हुआ था, रूह गई तो मरा। तो रूह आई करती, वो तो मैं शुरू में आपको तवज्जो दिला चुका, कब आई थी? हर स्टेज पर रहने मादर में जब स्पर्म दाखिल हुआ था, वो तो दाखिल होने से पहले भी लिविंग थिंग थी, जिंदा जिंदा एक शय थी। कब रूह आई थी? जब वो जिंदा हुआ। और अगर उसको हम इस वफात का तर्जुमा मौत समझे तो फिर ये कि अब रूह को ले लिया। अगर नफ्स का तर्जुमा रूह समझे तो, या तब नफ्सों को विड्रॉ कर दिया की जगह अगर तर्जुमा ये करने रूह निकाल ली। अगर रूह निकाल ली
एक जिस्म था, एक रूह थी। अब तो खाली जिस्म बचा, तो डेड बॉडी होनी चाहिए बिस्तर पर, और बिस्तरों पे डेड बॉडीज नहीं है, उनकी नींद के वक्त सोते वक्त लाशें नहीं है। इसका मतलब एक तीसरी एंटिटी है, एक तीसरी कोई शय है जिसका नफ्सों को विड्रॉ करता है, कोई और चीज भी है। नफ्सों को तो कर लिया था, वफात हुई, ये रूह है तीसरी, जिसको नफ्स मान लिया गया। नफ्सों को विड्रॉ किया जाता है, लेकिन रूह का कनेक्शन जब तक बाकी है तो मौत नहीं आई। जब रूह भी अलग हो गई तो नफ्स फिर वापस नहीं आएगा। अब नफ्स और जिस्म और रूह सब अलग अलग हो गई, मौत हो गई। इंसान जिंदा है अपने बिस्तर पर, सिर्फ कॉन्शियसनेस और शऊर और चेतन उसका बाहर की दुनिया के लिए नहीं है, अंदर के निजाम के लिए उसके डिसीजन और फैसले भी चल रहे हैं, उसकी बॉडी के, उसके जिस्म के, उसके दिमाग में। वहां से सिग्नल जा रहे हैं जिस्म के डिफरेंट हिस्सों के अंदर कि अब क्या करो क्या करो। थक गया पाओ बहुत, दर्द से सुकेड़ लो, घुटने मोड़ लो, सीधा कर लो, ये सब कुछ चल रहा है वहां पर। तो ये है रूह। ये दोनों मौत और वफात के फर्क को समझे बगैर रूह और जान के फर्क को नहीं समझा जा सकता। ये समझे कि ये वफात नफ्स की होती है, मौत भी नफ्स की होती है, लेकिन रूह नहीं होती उसके अंदर से, रूह को विड्रॉ किया जा रहा है। रूह एक अलग चीज है। नहीं आया से मालूम है कि जब सोते में नफ्स को विड्रॉ कर दिया जाता है तो मर जाता है इंसान, अगर नहीं मरता नहीं, वापस देखते, मौत अगर आई होती तो रोक लेते, और जब वापस देखते उससे पहले जितना विड्रॉ किया तो उसको जिंदा होता है इंसान, मरा नहीं होता है। मौत नहीं आई, मौत आ गई, अब डेड बॉडी बन गया, अब जिस्म का सिस्टम और निजाम को सब कुछ खत्म हो गया, चल रहा था जब मौत आई। तो ये रूह क्या है, इसे आप इन शॉर्ट मुख्तसर ऐसे समझ लें कि हर बॉडी के अंदर उसकी अपनी कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है, उसके अपने अंदर उसकी कुछ खुसूसियात और सिफात होती है, बेजान चीजों में होती है। जानदार चीजों के अंदर का मामला, जानदारों का, इंसानों का, जानवर, इनका मामला अलग है। इनकी सिफात और क्वालिटीज के अंदर किसी हद तक कुछ चॉइस भी आती है, कुछ इख्तियार भी आता है। जानवरों में आपने डंडा मारा, उसने सर अलग कर लिया, पत्थर पे डंडा मारा, वो अलग को नहीं हटा। एक चॉइस इख्तियार था अपने बचने और डिफेंस के लिए, उसने अपने आप को इस तरफ किया या भागा, पत्थर नहीं भागेगा। तो जितने जानदार हैं उनके अंदर एक लिमिटेड चॉइस और इख्तियार भी होता है, इंस्टिंक्ट्स होती हैं। उन इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से ये इसे एक लिमिटेड, एक महदूद इख्तियार होता है जानदारों के अंदर। ये जो जानदार हैं इनके अंदर और बेजान में फर्क ये कि बेजान के जितनी सिफात होती है वो उसके अपने अंदर होती है बॉडी में। जानदारों के अंदर ये जो इख्तियार वाली सिफात है ये उसकी जान में होती है, नफ्स में होती है। दुख सुख उसकी जान को होता है। बॉडी मीडियम बनती है, माध्यम, जरिया बनती है, जिसके जरिए तकलीफ हो रही है, लेकिन वो तकलीफ हाथ को नहीं हो रही। अगर हाथ से कोई चीज लगी है वो फील करने, महसूस करने वाली उसकी जान। जिस्म मीडियम और माध्यम और जरिया बन रहा है। तो ये जो एंटिटी है नफ्स या जान, ये है फील करने वाली, महसूस करने वाली, दुख सुख, हंसी खुशी। ये नफ्स हर एक के साथ में है। इस नफ्स की तीन क्वालिटीज कुरान ने बताई, तीन बड़ी बड़ी सिफात। नफ्स मुतमइन्ना, सेटिस्फाइड अल्लाह की हर बात पर, अपने मालिक की जिसने उसको पैदा किया था। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो सब अल्लाह से राजी। ये वो नफ्स है, नफ्स मुतमइन्ना। या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, है वो जान जो अल्लाह के फैसलों पर, अल्लाह के निज़ाम पर पूरे तरीके से राजी, मुतमईन।
ارجعی الی ربک، لوٹ اب اپنے رب کی طرف، وقت آ گیا، راضیۃ مرضیہ، ایسے کہ تو وہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اب میرے خاص بندوں میں داخلہ تیرا، داخل ہو جا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ پھر ایک کوالٹی نفس کی بتائی ہے، نفس لوامہ، قرآن میں کہا کہ لا اقسم بنفس لوامہ، یہ لوامہ ہے ملامت کرنے والا، اس کی کوالٹی، غلطی کرتا ہے پھر اندر سے ہی نفس کی وہ کوالٹی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اندر سے آ رہی ہے، یہ رکنا چاہیے، اسے نہیں کرنا چاہیے، برا ہے، ملامت کرنا یہ نفس کی ایک کوالٹی۔ یہ بیچ کا حصہ ہے کہ کرتا ہے، برائی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد بھی اندر سے کچوکے لگا رہا ہے نفس کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نفس کی وہ کوالٹی ابھی زندہ تھی، اسے مار نہیں دیا۔ اور نفس کی تیسری کوالٹی نفس امارہ، یہ وہ ہے جو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اب ملامت بھی نہیں ہو، دل پکا ہو گیا، برائیوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ نفس کی 3 طرح کی کوالٹیز بتائی ہے، یہ نفس کی روح کی نہیں ہے، جزا سزا، اچھا برا بدلہ سب رب کو ملنا ہے، دکھ سکھ محفوظ کرنا، یہ سب رب کا معاملہ ہے۔ روح ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ سم ڈال لیا آپ نے موبائل کے اندر، موبائل تو اس کی باڈی ہے، سم اس کی جان ہے، یہ موبائل بیکار آپ کا، موبائل کی باڈی بیکار آپ کی، اس کے سم کے بغیر، سم نکال لیے، ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کمیونیکیشن نہیں، سم ڈالنے کے بعد ہوگا، لیکن سم کو پہلے ایکٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے، اس ایکٹیویشن کے بعد سم چلتا ہے، وہ ایکٹیویشن روک دیا جائے تو پھر سم ختم، چاہے اندر پڑا ہوا، وہ ایکٹیویشن سارے سم کا جتنے ایک کمپنی کے سم ہے ایک جگہ سے ہوتا ہے، ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے سارے سم کا ایکٹیویشن۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ قریب کی دکان کے اوپر گئے اور آپ نے کہا اس کو ایکٹیویٹ کر دو، تو وہ ایکٹیویشن وہاں سے کرا کر دیتا ہے جو اس کا سینٹر ہے، تو اس کے اپنے پاس کچھ نہیں کہ وہ ایکٹیویٹ کر دے۔ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد پھر سم کی جتنی کوالٹیز تھی اس کے اندر رکھی گئی تھی، اب وہ چل پڑتی ہے، ساری ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو ہماری باڈیز ہوتی ہیں، ان باڈیز کے اندر، جیسے یہ باڈیز، میں ڈیڈ باڈیز کی بات کر رہا ہوں، یہ پنکھا ہے چل رہا ہے، ابھی لائٹ چلی گئی تھی، پہاڑ چلی گئی تھی، تو پنکھا بند، لائٹ سی بند ہو گئی، وہ پنکھا باہر کا آپ کا انورٹر سے چل رہا تھا، یہ لائٹ بند ہو گئی، یہ بیچ میں پاور ابھی چلی گئی تھی، پھر آئی، پھر جل گئی۔ اب یہاں اے سی چل رہا ہے، یہ بند ہو گیا، پنکھے بند، اے سی بند، لائٹ بند، کوئی ہیٹر ہوتا تو وہ بھی بند ہو جاتا، لائٹ آتے ہی سب چل پڑے۔ ہیٹر میں وہی پاور گئی تو گرمی نکلی، ان بلب میں وہی پاور گئی تو روشنی نکلی، اس پنکھے میں وہی پاور گئی تو یہ گھومنے لگا، کچھ بھی نہیں نکلا، میکینیکل ایکشن بن گیا، مشین۔ پنکھا ٹھنڈک نہیں دیتا، پنکھا ہوا بھی نہیں دیتا، پنکھا تو گھومتا ہے، تو وہ جو وہاں ہوا اس کی، وہ ہوا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور ہوا اس کے بعد اس کی ویو جو ہے وہ ہوا لگتی ہے، کہ ہوا رکی ہوئی تھی اس نے ہوا کو ہلا دیا، تو یہ ہلنے لگا، اس کے پر ہلنے لگے، میکینیکل ایکشن ہے یہ۔ پنکھے میں گیا کرنٹ، میکینیکل ایکشن ملا، ہیٹر میں گیا گرمی ملی، اس میں آیا لائٹس کے اندر روشنی ملی، اے سی میں آیا وہی کرنٹ، ٹھنڈک مل گئی، کرنٹ تو ایک ہی ہے،
एसी में जाके ठंडक मिल रही है, हीटर में जाके गर्मी मिल रही है, कन्वेक्टर में जाके गर्मी मिल रही है। तो करंट न ठंडा था, न गर्म था, न घूमता था, न चमकता था। ये क्वालिटी उस बॉडी की थी जो एक्टिवेशन के बाद जाहिर हो गई। जब तक एक्टिवेटेड नहीं थी, ना इसमें रोशनी थी, ना पंखा घूमा था, ना एसी में ठंडक आई थी, ना हीटर गर्म हुआ था। एक्टिवेशन के बाद उन बॉडीज की अपनी क्वालिटी जाहिर हो गई। तो करंट ठंडा नहीं होता, करंट गर्म भी नहीं होता, करंट घूमता भी नहीं, करंट रोशनी भी नहीं देता, ये पार नहीं करती। ये तो कनेक्शन है जो आया। ये कनेक्शन जब इस कमरे का गया तो यहां की लाइट गई, बाकी सब जगह है, कहते हैं फ्यूज हो गया देखिए कमरे का। ये कनेक्शन इस बिल्डिंग का गया, आसपास मोहल्ले में लाइट तो जल रही, क्या हुआ, हमारा मेन फ्यूज गया, तो कनेक्शन यहां का खत्म हो गया। ये कनेक्शन पूरी बस्ती का गया, जैसे रामपुर का हमारा फीडर गया, मुरादाबाद वगैरह में लाइट आ रही है। यही कनेक्शन रूह होती है। एक खास स्टेज पर उस जानदार में, जो मां के पेट में जानदार शय है, अभी चीज है, वो इंसान नहीं है, जो ग्रो कर रही, जो बढ़ रही है, एक खास स्टेज पे वो कनेक्शन आया रूह का, अल्लाह की तरफ से। वो रूह ना अच्छी है ना बुरी है, ये अच्छा बुरा होना तो उसके नफ्स की सिफत थी, अब एक्टिवेट होगी। उसमें चॉइस भी थी, अच्छाई बुराई सब रखी गई थी। उस नफ्स की क्वालिटीज में ये भी था कि किसे दबा दे, किसे इस्तेमाल करे, अच्छाई और बुराई में से। अब एक खास स्टेज के ऊपर वो कनेक्शन आया, रूह आई, अब इंसान हो गया, काबिल एहतराम भी हो गया। पेड़ पौधों को काट लाते, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना नहीं होता, रूह नहीं होती। अगर आपने कहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने नहीं कहा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तो कोई बात नहीं, वो हराम नहीं हुआ, वह रूह नहीं थी, ये फर्क है। रूह से काबिल एहतराम हुआ। जिनमें रूह है उन्हें ऐसे नहीं काटा जा सकता, खत्म हो जाएगा, हत्या मना है। ज़िबा किया जा सकता है, जिसने इजाजत दी उसका नाम लेकर, और जिन की इजाजत दी बस उन्हें, उनके अलावा किसी को नहीं। तो क्या कहते हैं आप, हलाल किया, यानी असलन हराम थी, हलाल तो तभी किया ना। जान लेना हराम था सबका, जिनकी अल्लाह ने इजाजत दे दी, अल्लाह का नाम लिया उस वक्त, अल्लाह आपने इजाजत दी इसलिए कर रहे हैं, तो अल्लाह के नाम से हलाल हो गया। ये तो कहते हैं हलाल कर रहे हैं, हलाल तब कर रहे हैं जब असलन वो हराम था। और ये पेड़ पौधे और सब्जी तरकारी ये कभी हराम नहीं थी, ये टोटली हलाल। समंदर का शिकार ये हराम था ही नहीं, ये हलाल था। और इन्ना लकुम फैदल बाहर, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल कर दिया गया, अब तुम्हें हलाल नहीं करना। ये हराम थे ये जानवर, इनको हलाल करना है अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह का नाम नहीं लिया, सब कुछ वैसे ही किया, अल्लाह का नाम नहीं लिया, हराम हो गया, हराम रहा हुआ। तो ये है एक रूह खास स्टेज में आई इंसान के उस शय में जो जानदार, अब इंसान हो गया। रूह के आने के बाद नफ्स की क्वालिटीज जो है, नफ्स एक्टिवेट हो गया। अब बॉडी मीडियम है, नफ्स की क्वालिटीज और सिफात है, रूह ने एक्टिवेशन दिया है। जिसकी मौत का वक्त आया उसका कनेक्शन एक्टिवेशन विड्रॉ हो गया है, कनेक्शन खत्म। एक घर के सब लोग मर गए, उस घर का कनेक्शन ले लिया गया। एक बस्ती के सारे लोग खत्म हो गए, उस बस्ती का कनेक्शन विड्रॉ कर लिया गया, सब लोग खत्म। कोमा में आ गए पेशेंट, अब 3 साल से कोमा में हॉस्पिटल में पड़े, कुछ नहीं, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, दिमाग कुछ नहीं, समझ में नहीं आता, जानते कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे कोई वेजिटेबल ऐसे पड़े बिस्तर पे, 3 साल से पड़े कोमा, मरे नहीं, मौत नहीं आई। ऐसे भी केस होते हैं कि आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, कभी कभी होते हैं ऐसे केस
रोने की आवाज आई, कब्र में से खोदा तो वो वहां जिंदा था, उसे मुर्दा समझ के दफन कर दिया। हुए हैं कभी कभी ऐसे वाकयात, कभी कभी होते। खुशी की लहर दौड़ गई, मुर्दा समझ के, तो सबने देखा था मुर्दा है, सबने चेक कर दिया था, फिर दफन किया, वो जिंदा है। डूब कर मरने वाले और कई चीजें और ऐसी हैं, कई असबाब और ऐसे हैं जिनसे अगर मौत हो जाए तो विद इन लिमिटेड टाइम रिवाइव किया जा सकता है। तो वो मौत नहीं होती, जैसे मैंने कहा मौत हो जाए, मौत होती ही नहीं। हालांकि हार्ट बीट रुकी है, डॉक्टर ने फैसला दे दिया कि मर गया, उस हार्ट बीट को रिवाइव किया जा सकता है दवाओं से, आर्टिफिशियल इंजेक्शन से, आर्टिफिशियल पैसिफायर से, आधे घंटे में या कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर। इसलिए कभी रूह ने नहीं छोड़ा, जब रूह ने छोड़ दिया तो वापस वो बिल्कुल बेजान की तरह है। इसे कहते हैं क्लिनिकल टेस्ट। डॉक्टर ने फैसला कर दिया मर गए, एक्चुअल डेथ नहीं हुई है। ये बड़े क्रूशियल होते हैं बहुत से लोगों के, जैसे पता नहीं कितने लोग दुनिया में दफन कर दिए गए जो जिंदा थे, फिर वहीं पर उनकी मौत हो गई। इसलिए कि हमारा तो हर डॉक्टर ये कह रहा है कि तो मर गए। बहुत खास केसेस में बात खास डॉक्टर पहचानते हैं इस बात को, जो एक्सपर्ट होते हैं कि अभी एफर्ट की जा सकती है। हाँ, हार्ट बीट रुक गई है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, नब्ज नहीं चल रही, लेकिन अभी सांस नहीं चल रही है, लेकिन अभी रिवाइव किया जा सकता है। मौत से वापसी नहीं होती, रिवाइव नहीं किया जा सकता। उस वक्त रूह उस वक्त तक मौजूद थी, उस वक्त तक उसको वापस लाया जा सकता है। तो रूह जो है ये तमाम आलम की कोई एक ही है, जब कुरान ने एक जिक्र किया है। सारे आलम की रूह कोई एक हकीकत है जहां से डिफरेंट मुख्तलिफ एक्टिवेशन है। फिर ये रूह है क्या? मैंने आपको अभी तो रूह के बारे में ये बताया कि फंक्शन क्या है हमारे साथ, ये रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है। रूह के और कुछ फंक्शन थे, उन्हें भी देखिए कुरान ने बताया। ये एक ही रूह के, जो तमाम आलम की एक रूह, हर इंसान के अंदर वही एक रूह दाखिल हुई। इसे अल्लाह ने कहा मेरी रूह में अपने लिए इस्तेमाल किया। नफ़ख़ रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल है, रूह फूंकना का जो लफ्ज़ आया कुरान में, नफ़ख़ माने फूंकना, फूंकने के लफ्ज़ के साथ से आई। फूंकने की उस कैफियत को हम नहीं जान सकते कैसे, जिसे फूंकना कहा गया। जैसे सूर में फूंका जाएगा, वहां भी नफ़ख़ है, रूह से खातिर, फिर सूर में फूंका जाएगा। तो ये हमारे समझाने के अल्फाज है। फूंकने का मतलब अल्लाह का मुंह नहीं, किसी चीज में डाल के फूंक मारी, या किसी फरिश्ते ने उन्होंने उसके अंदर मुंह उसमें डाल के कोई फूंक मारी। हमारे समझने के अल्फाज और कैफियत को हम नहीं समझ सकते कि वो क्या हुआ, उसमें कैसे एंटर किया गया। तो जैसे हम समझे कि इस चीज में फूंक के एंटर हो गई, तो इसलिए वो फूंकने के अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल आए। ये नफ़ख़ रूह का देखिए कुरान के अंदर सूरह सजदा है, जिसकी आयत नंबर 7 से 9, ये 3 आयत है। अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलक़हू, वही है अल्लाह, कितनी अच्छी उसने हर शय बनाई, फिर उसके बाद तख्लीक की, उसने तख्लीक की हर शय की। वह बदा, और स्टार्टिंग की, खलक़ल इंसान की तख्लीक की स्टार्टिंग की, मिन तीन, अर्थ के एलिमेंट से। मिट्टी से का मतलब खेत की मिट्टी नहीं, ये जो एलिमेंट्स है, अनासिर हमारे हम जानते हैं जिन्हें 118 मिट्टी में कार्बन होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है, मिट्टी के अंदर मुख्तलिफ गैसेस होती हैं। ये तमाम चीजें आपको होता है कि आपकी बॉडी में भी आपके ब्लड आयरन कम हो गया है, फास्फोरस कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, पोटेशियम कम हो गया। लीजिए सप्लीमेंट लीजिए, कुछ आप कैप्सूल खाइए कि वो पोटेशियम और कैल्शियम जो कम हो गया है, सोडियम कम हो गया है। अब ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपकी बॉडी में ये सब है। यही अनाज है सारे मिट्टी के। मिट्टी का मतलब अर्थ के एलिमेंट, ये मिट्टी खेत की मिट्टी नहीं है। इंसान को पहले इन अनासिर से पैदा किया, उसने तख्लीक की, स्टार्टिंग तो ऐसे हुई उसकी बॉडी की। तुम जहाला नस्लहू, अब स्टेजेस है कैसे जान आई, उसका जिक्र नहीं है। फिर
उसकी नस्ल को बनाया मिन सुलालतिन मिन माइन महीन, उसकी नस्ल को बनाया बिल्कुल नाकाबिले जिक्र हकीर लिक्विड से आगे चलाया उसके नस्ल को, स्पर्म से नुस्खे से उसको आगे चलाया। तुम सवाओ, अब उसके अंदर अब वो जो है उसको बिल्कुल ठीक ठाक किया, एक सही बिल्कुल शेप दे दी, इंसान होने के जब काबिल हो गया, वह नफका फीही मिन रूही, फिर उसमें फूंका। ये जो अल्फाज है ये आमतौर से तर्जुमा होता है अपनी रूह फूंक दी, यहाँ अल्फाज है मिन रूही, रूह ही आप में से बहुत से लोग ये कुरान की अरबी जानते हैं, पढ़ रहे हैं, तालिब इल्म है, रूह ही उसकी रूह, अपनी रूह में से, मिन मने से, अपनी रूह में से फूंका। अपनी रूह क्या है अल्लाह की? अल्लाह खुद रूह नहीं है, वो क्या है ये तो कोई नहीं जानता, इन तमाम बातों से परे, न जिस्म न रूह, अल्लाह खुद रूह नहीं, रूह तो अल्लाह की क्रिएशन है, तख्लीक है, अल्लाह ने रूह को पैदा किया, वो खुद रूह नहीं है, रूह अल्लाह की सृष्टि है, वो खुद तो हम सारी बातों से इनसे ऊपर है जिन्हें हम जानते हैं, इन सबसे ऊपर जिसे हम नहीं समझ सकते। अपनी रूह में से फूंका तो कोई एक खास, उसकी वही एक रूह जिसे अल्लाह ने कहा ये मेरी रूह है, मेरी का मतलब जिसे हम बोलते चले जाए ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है इस बात है कि हमारे अंदर कोई रूह है वो मेरी रूह है, जैसे मैं कह रहा हूं मेरा जिस्म मेरी, ऐसी मेरी रूह नहीं, अल्लाह ने जिस रूह को पैदा किया वो एक ही रूह, उसे अल्लाह ने कहा ये मेरी रूह, अल्लाह की पैदा की हुई जो एक रूह है उसमें से कनेक्शन दिया उसको, ये एक ही है, मेरी रूह एक ही है। और उसके बाद फिर वो सारी फैकल्टीज आ गई, कौन सी? जिस्म तो था, जायरा लोगों समा, कान भी थे, आंखें भी थी जो जिस्म बना था, और उसमें हार्ट भी था, लेकिन अब ये फैकल्टीज आ गई सुनने की, देखने की, समझने, गौर और फिक्र करने की, आंखों की, जायरा लोगों समा वाला सारा वाला अफीदा, ये तीन चीजें वो हैं जिनके जरिए इंसान हिदायत हासिल करता है, सुनना, देखना, गौर करना, ये तीन चीजें वो हैं। बॉडी में तो बहुत सी चीजें, हाथ के जरिए हिदायत हासिल नहीं करता, हाथ तो अमल करता है, अच्छा बुरा काम करता है जब उसे ऑर्डर मिलता है, पांव चलते हैं बुराई की तरफ जब उन्हें ऑर्डर मिलता है कि चलो उधर ये अच्छाई की तरफ, लेकिन ये हिदायत हासिल नहीं करते, गेन नहीं करते। हिदायत हासिल करने की तीन सोर्सेज हैं इंसान के, जिसमें सुनना, देखना और फिक्र करना और अक्ल का इस्तेमाल। इंसान को फिर ये तीन चीजें, ये खाली कान को नहीं कहा, अब उसके अंदर वो तीन चीजें रख दी कि जिससे वो हिदायत हासिल करेगा, ये इंसान को दे दी। रूह आने के बाद, उससे पहले नहीं था ये, जब तक नफ्स था खाली उसका हिदायत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अब रूह आने के बाद जो है वो उसके अंदर ये तीन चीजें आ गई। तो ये तो था नफ़्ख़ रूह, ये बहुत सी आयात है कुरान शरीफ में मुख्तलिफ जगह। ये दूसरा उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन रूह का, रूह से मदद होती है। ये आपकी रूहों की बात वही बात कि हम जिसे कहते हैं हमारी रूह, ये कोई चीज नहीं है, इनसे मदद नहीं होती। लेकिन अब ये तो रूह का कनेक्शन आ गया, लेकिन अभी फिर रूह बाकी कोई कनेक्शन आ जाने का मतलब वहां से फिर उसके फंक्शन और बाकी है, वहां से मदद आती है, रूह मदद करती है। रूह को इस्तेमाल किया जाता है मदद अल्लाह की तरफ से। कैसे? यानी क्या फंक्शन वो कुरान शरीफ में देखिए, बात है ना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात, हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़े खुली खुली निशानियां दी, वअय्यदनाहु और उसकी हेल्प की, मदद की, ताईद की, बिरूहिल कुदस, रूहुल कुदस के जरिए। लोग हज़रत जिब्रील यहां समझ लेते हैं, कहीं ना कुरान ने कहा ये हज़रत जिब्रील है रूहुल कुदस, न कहीं हदीस में। अभी आप इसे रूह समझिए, रूह ही रखिए, मैं उस बच्चे को भी वादे करूंगा क्यों हज़रत जिब्रील समझ लिया गया, ये गलतफहमी क्यों हुई। ईसा इब्न मरियम को वाज़े निशानियां दी और उनकी मदद की, हेल्प की, उनको ताकत दी, ताईद की रूह कुदस के जरिए, पाक रूह के जरिए, मुकद्दस रूह के जरिए। ये अल्लाह की अपनी रूह, अपनी रूह का मतलब उसके अपने अल्लाह के अपने अंदर रूह नहीं, अल्लाह ने जिस रूह को पैदा किया है वो एक ही है, उसके जरिए मदद आती है।
یہ مدد سب رسولوں کے لیے خالی ہونے کی بات نہیں تھی. کچھ رسولوں کا بیان کر کے کہا اس سورت کے اندر, سورہ نمبر 58 آیت نمبر 22, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا. یہ وہ لوگ تھے وَأَيَّدَهُمْ, اور ان سب کی ہیلپ کی تھی, تائید کی تھی, سپورٹ کیا تھا ان سب کو بِرُوحٍ مِّنْهُ. دیکھیے روح القدس نہیں آیا, خالی لفظ روح آ گیا. بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور منہ بھی ہے, روح کے ذریعے, منہ جو اللہ کی طرف سے تھی, اللہ کی طرف, اللہ کی طرف سے جو روح, اللہ کی نہیں, اللہ کی طرف سے جو روح تھی اس کے ذریعے سب رسولوں کی ہیلپ کی. اور صرف وہی رسول نہیں جن پر اللہ نے وحی بھیجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو رسول بنا گئے. اگر رسالت کے فرائض انجام دے تو روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد ہوگی, طاقت ملے گی. اگر رسول ہونے کا آپ حق ادا کریں تو اللہ کی طرف سے روح القدس کے ذریعے مدد ہوگی. یہ بڑی اہم, بڑی امپورٹنٹ مدد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب مخالفوں کے پوری دل میں سے اب غیر معمولی چیزیں آ رہی ہیں, سب روح القدس کے ذریعے مدد ہو رہی ہے, اور ان کو نکالتے چلا گیا اللہ, سب سے بچاتا چلا گیا. رسولوں سے ایمان لکھ دیا اور روح القدس کے ذریعے مدد کی. تو روح القدس کے ذریعے الگ ایک اسپیشل مدد, اسپیشل قوت ملتی ہے. یہ ڈائریکٹ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے, اللہ کے روح کے ذریعے آتی ہے, جو اللہ نے روح کو, جس روح کو پیدا کیا. یہ ایک دوسرا سمجھا نہیں ہوگا. دیکھیے تیسرا, یہ سب روح سے ہو رہا ہے. روح کا رسولوں پر نازل ہونا, روح نازل, یہ تو ہے ہر ایک کنیکشن آ گیا, ایکٹیویشن. وہ روح جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ ہے روح, وہ اس کے بعد بھی اب یہ روح نازل کی جاتی ہے رسولوں کے اوپر. جب رسول بنتے ہیں تو روح نازل ہوتی ہے ان کے اوپر. یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے وہ وحی, آپ اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ کا وحی کی کیفیت کیا ہے, ان کے قلب میں نازل ہو رہی ہے, وہ روح کا نزول ہوتا ہے. وحی کیسے آئی ان کے, اس کے اندر وہ روح کا فنکشن ہے جیسے وحی اس کے اندر آ گئی ان کے اندر. دیکھیے يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے روح کے ساتھ اپنے امر سے. عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, اپنے جن بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کے کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ. تو یہ روح حضرت جبریل نہیں ہے, فرشتوں میں آ گئے حضرت جبریل, حضرت جبریل فرشتوں میں آ گیا. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجیے اوپر آ چکا, کہیں روح لفظ استعمال کیا, کہیں روح القدس. ہم نے روح القدس کے ذریعے مدد کی, ہم نے روح کے ذریعے مدد کی. تو یہ روح القدس اور روح ایک ہی ہے, الگ الگ نہیں ہے, مقدس پاکیزہ روح. تو اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ اپنے امر سے. عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے أَنذِرُوا, کہ وہ پھر ڈرائیں, أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ, کہ میرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے تو صرف تقویٰ میرا ہی اختیار کرنا. یہ وہی ہے, وہی تو حضرت جبریل لاتے تھے. خالی ملائکہ فرشتے, یہ سارے اور کون سے فرشتے کون ہیں, وہی تو صرف حضرت جبریل لاتے تھے. یہ ایک الگ پروسیس ہے, فرشتوں کو جس چاہتا ہے جو روح کے ساتھ میں نازل کرتا ہے, اس حضرت جبریل بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھی کوئی اور فرشتہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ بائبل کی, میتھیو بائبل کے اندر اردو میں کہتے ہیں متا کی انجیل, ہندی میں کہتے ہیں متی کی انجیل, اور انگلش میں گاسپل آف سینٹ میتھیو 3:16, چیپٹر نمبر 3 اور نمبر 16. یسوع بپتسمہ لینے کے لیے جو ہی پانی سے باہر نکلا تو آسمان کھل گیا, اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کے مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا. کبوتر کے مانند تو معلوم نہیں, اس کے اندر چھپک, یعنی اس کے اندر ملاوٹ ہے یا اس کے کوئی خاص مفہوم ہے, ہمیں نہیں معلوم. اس لفظ کو رہنے دیں, ہم کبوتر کے مانند کوئی خاص مطلب ہوگا یا ہم نہیں جانتے, یا ہو سکتا ہے ملاوٹ ہوئی پانی. پھر اس کے بعد حضرت مسیح کا جب بپتسمہ ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنے اوپر روح کو اترتے دیکھا. اب اوپر روح, یہاں سے
बाइबल के मुताबिक, ईसाइयों के मुताबिक इसे वो कहते हैं मिनिस्ट्री, जीसस की मिनिस्ट्री स्टार्ट, यानी यहां से अब वो असल काम करने के लिए, जिस काम के लिए भेजे गए थे, यहां से शुरू हुआ। ये वही उनकी यहां से रसूल बने थे इस देश से, कि उन पर रूह का नज़ूल हुआ, वहां से वो रसूल बने। ये उनका कहने का या उनके कॉन्सेप्ट बदल गए हैं बाइबल वालों के, तो कहने का अंदाज अलग है, लेकिन उनकी ये कहते हैं मिनिस्ट्री उस दिन से शुरू हुई जिस दिन उनके ऊपर रूह नाजिल हुई, आत्मा जिस दिन उनके ऊपर अवतरित हुई, नाजिल हुई, तो तब से उनकी मिनिस्ट्री स्टार्ट, रिसालत उस दिन से शुरू हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, जब रूह का नज़ूल हुआ उनका, ये बाइबल ने भी कहा। और फिर ये सूरह शूरा की आयत है, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, और ऐसे ही हम वही औहयना वही करते हैं इलैका तुम्हारी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप लोगों को खिताब, वो आपकी वही का अंदाजा अलग है, वो नहीं जो रसूलों की वही होती है, दिल में बात डाला जाना। वही का लफ्जी माने इशारा, खुफिया इशारा, ये लफ्जी माने वही के। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, और ऐसे इस तरीके से हम वही करते हैं तुम्हारी तरफ से रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मुखातिब थे इसके। रूहन वही क्या करते हैं, रूह को वही करते हैं, बात पे गौर कीजिएगा, ऐसे ही हम रूह को वही करते हैं तुम्हारी तरफ अपने अम्र से। तो ये वही जो नाजिल होती है उसकी माहियत और कैफियत के अंदर कुछ रूह का रोल होता है, रूह का नुज़ूल होता है, तो वही आती है। ये हज़रत जिब्रील तो बाहर से एक्सटर्नल, ये सीधी कल्ब पर आती है। हज़रत जिब्रील लेकर आते हैं, लेकिन नुज़ूल कल्ब के ऊपर होता है कुरान शरीफ में बहुत सी जगह। माकन कुंता तदरी मल किताब वल ईमान, इससे पहले तो तुम जानते नहीं थे किताब क्या है और ईमान क्या है। अब यह है वही नाज़िल हो रही है, तो ये कहा हमने वही की तुम्हारी तरफ, एक रूह को वही किया, रूहन एक रूह, और रूह नहीं का रूहन एक रूह तुम्हारी तरफ हमने वही की अपने अम्र से। तो उस दिन से तुम्हें मालूम हुआ किताब और ईमान क्या है। और ये रूह का चौथा फंक्शन है कुरान शरीफ में, जो मुख्तलिफ अहम रूह के फंक्शन दिए हैं। अल्लाह के निजाम का इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन, अल्लाह के निजाम का निफाज, तो उसमें फरिश्तों के साथ रूह होती है। अब फरिश्तों में तो अभी जिब्रील आ गए, फरिश्तों के साथ रूह, अभी मैंने पढ़ी क्या यार, तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, शब कद्र में, उस रात में, सूरह अल कद्र की आयत नंबर 4, फरिश्ते और रूह नाज़िल होते हैं अपने रब के इज़्न से, हुक्म से। और देखिए एक बात और याद रखिएगा, ये इससे यहां आ गई इसलिए मैं तवज्जो दिला रहा हूं, इस मौजूद की नहीं है। बेइज़्न रब्बी, अपने रब के इज़्न से। जब भी ये लफ्ज़ इज़्न अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता किसी ने पूछा तो अल्लाह ने ओके कर दिया, चलो हमने पूछा अल्लाह ने इजाजत दे दी। हमारे तो इज़्न भी कहा जाता है, लड़की से पूछा तुम्हें कबूल है फला रिश्ता, उसने इज़्न, कहते इज़्न देने जा रहे हैं, उसने इज़्न दे दिया। तो पहले पूछा गया, फिर उसने इज़्न दे दिया। जब ये लफ्ज़ कहां कहीं भी कुरान शरीफ में अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें पूछना कहीं नहीं होता। तो कोई पूछे तो फिर उसने कहा परमिशन नहीं, इसका मतलब होता है हुक्म, जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। ये बड़ी अहम बात है जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और कुरान शरीफ में आप चाहे जिस जगह उठाकर देख लीजिए, इसका तर्जुमा आपको हर जगह पर हुक्म नहीं मिलेगा, जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ी अहम बात है ये, इसलिए कि वो जो शफात वाली बंदे यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्नि रब्बिहिम इल्ला बिइज़्नि, बंदे यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो शफात कर सके उसके पास, इल्ला बंदे यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो शफात कर सके उसके पास सिवाय इसके कि उसका हुक्म होगा। वहां ये नहीं कि अगर आप हमें शफात की इजाजत दी, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, और फिर वो इजाजत दे के जाओ तुम्हें इजाजत, उसका हुक्म होगा जिसके लिए वो करेगा। अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से कोई परमिशन नहीं लेगा। बहरहाल ये तो दरमियान में बात आती है, तो मैंने बताया कि अल्लाह की तरफ जब अल्लाह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब इजाजत नहीं होता, उसका मतलब हुक्म होता है, वन साइडेड।
मलाइका और फरिश्ते नाज़िल होते हैं उस रात में अपने रब के हुक्म से तमाम जितने उमूर जो आलम अम्र में जो चीजें हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और देखिए मलाइका और रूह, अगर रूह हजरत जिब्रील होते तो मलाइका और रूह नहीं कहा जाता। मलाइका में तो हजरत जिब्रील शामिल है, फरिश्ते और रूह, ये रूह कोई और हकीकत है। अब ये चौथा फंक्शन है उसका, ये रूह फरिश्तों के साथ जब इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होता है तो फरिश्ते हैं, फरिश्तों के हाथ में अलग अलग निजाम है, लेकिन कोई रूह की मौजूदगी जरूरी है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है जो बड़े उमूर होते हैं अल्लाह के। हश्र के मैदान में यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, सब वक्त खड़े होंगे मलाइका भी और रूह, फरिश्ते और रूह। ये रूह का चौथा फंक्शन है। ये रूह की हकीकत को अरे कुरान ने इतनी बातें बताई जगह जगह से, वहां से ले ले, इस पे गौर नहीं कर रहे कि कितने फंक्शन है रूह क्या है, नहीं मुकम्मल जानते, लेकिन बहुत कुछ जितना कुरान ने साफ लफ्जों में बताया उसको इकट्ठा तो कर लीजिए तो फिर बहुत कुछ तो आएगा समझ में। इल्म कम रहेगा लेकिन इतना भी तो लोगों को नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, जो साफ लफ्जों में कुरान कह रहा है। कम लोगों को होगा तो इतना ही, जो कम इतना कम से कम हो जितना साफ लफ्जों में कुरान है, कुछ और डिडक्शन में गौर करने का कहा जाए तो वो तो फिर और आगे की बात, वो भी इल्म है कुछ लोगों को। ये मुगालता क्यों हुआ तक मैं आज थोड़ा सा आगे बढ़ गया वक्त, लेकिन मैं इतना मैं पूरा करूं फिर बाकी अपनी मर्तबा। ये हजरत जिब्रील को माना गया, ये रूह हजरत जिब्रील, रूह कुदुस हजरत जिब्रील मान लिया गया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि ये कहा था कुरान में, ये सूरह नहल की आयत है, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिन रब्बिका बिल हक़, कह दो कि उसको रूहुल कुदुस ने नाज़िल किया तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ। किसे? कुरान को। कुरान को रूहुल कुदुस ने नाज़िल किया तुम्हारे रब की तरफ से। दूसरी जगह कहा कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, इन दुश्मनों पे कह दो, अगर जिब्रील के दुश्मन होंगे वही लाने पे इनसे कह दो जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो, फइन्नहु नज़्ज़लहु, तो वही तो है जिसने नाज़िल किया अला क़ल्बिका तुम्हारे कल्ब पर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वही तो है, जिब्रील ने तो नाज़िल किया। ये ऊपर जो आयत थी ये सूरह बकरा की आयत थी, नीचे वाली 97, और ऊपर वाली आयत थी सूरह नहल की आयत 102। कह दो कि अल्लाह ही ने उसने नाजिल किया है रूहुल कुदुस को, रूहुल कुदुस कुरान को नाजिल किया है, रूहुल कुदुस ने तुम्हारे रब की तरफ से, रूहुल कुदुस ने नाजिल किया है। नीचे कहा गया कि जिब्रील नहीं तो नाजिल किया है, तुम्हारे कल के ऊपर। इसलिए धोखा हुआ ये कि जिब्रील और रूहुल कुदुस एक ही है। आपको भी लग रहा होगा तो बहुत बात बातें हो गई, ये तो हजरत जिब्रील को कुरान कह रहा है, इसलिए ये माना जाने लगा, हमारे इल्म ये मानने लगे कि हजरत जिब्रील और रूहुल कुदुस एक ही है। देखिए आगे देखिए कुरान किसने नाज़िल किया। अब एक तो यह है, अभी आपने पढ़ा कि रूहुल कुदुस ने नाज़िल किया तुम्हारे रब की तरफ से। एक दूसरी चीज, अभी आप एक मत माने, ये अल्फाज देखिए किस किसने नाज़िल किया। कुरान हजरत जिब्रील ने नाज़िल किया, ये तो आ चुकी है भी आपके सामने, तो ये भी तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने नाज़िल किया है, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़, अल्लाह ने नाज़िल किया है। और बताइए अल्लाह ने नाज़िल किया है या जिब्रील ने किया या रूहुल कुदुस ने किया? नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़, किताब तुम्हारे ऊपर ए नबी नाज़िल की है हक़ के साथ, अल्लाह ने। किसने किया? अल्लाह ने नाज़िल किया या रूहुल कुदुस ने या जिब्रील ने? हज़रत जिब्रील ने। अब बात क्लियर होगी, अल्लाह ने नाज़िल किया, रूहुल कुदुस पहला जरिया बने, हज़रत जिब्रील अल्लाह जरिया बने। अल्लाह ने रूहुल कुदुस की तरफ भेजा और रूहुल कुदुस ने हज़रत जिब्रील की तरफ भेजा, हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह के पास ले आए, तो इन सब ने नाज़िल किया। इसका मतलब अगर हम ये कह दें इन आयतों को, ये बीच वाली हटा दीजिए, तो नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस, ये दरमियान वाली हटा दीजिए। अब हम ऐसे कंपेयर करने लगे, अल्लाह ने नाज़िल किया, नीचे कह रहे हैं जिब्रील ने नाज़िल किया, तो फिर नऊज़ुबिल्लाह क्या हम कहेंगे ऐसे जिब्रील अल्लाह है? अगर ऐसे कंपेयर करके हम मानने लगे, जैसे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की आपने कंपेयर करके ये समझ दिया लोगों ने कि रूहुल कुदुस और जिब्रील एक ही है, तो ये बीच वाली आयत हम हटाते, अल्लाह ने नाज़िल किया, नीचे देखा जिब्रील ने नाज़िल किया, तो फिर ऐसे अगर मुकाबला करें तो ये होगा कि अल्लाह और जिब्रील एक है, नऊज़ुबिल्लाह।
नहीं, पहला असल में अल्लाह ने नाज़िल किया, ये रूह कुदस से पहला जरिया, ये पहले रूह कुदस के पास, और फिर रूह कुदस से हज़रत जिब्रील को, और हज़रत जिब्रील से रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूल हो। ये जरिए हैं दरमियान, ये तो हज़रत जिब्रील अलग है, रूह अलग है। इससे यदि होता इन दोनों आयतों से मिला तो ये मान लिया कहते कि रूह कुदस से जिब्रील एक। ये रूह के मौजू में अभी कुछ बातें असल में तो बहुत है, और मैं बहुत से आयात की तफसीर में मुख्तलिफ तकरीरों में बात बहुत से गोशे में बेरूह के बयान करता रहा हूँ, जो सब नहीं आएंगे यहाँ इस वक्त। अब रूह के सिलसिले में चंद बातें और फिर वो आयत जिसके अंदर यसअलूनका अनिर रूह, जो असल आयत थी हमारी सूरह बनी इसराइल, जो तुमसे ये रूह का सवाल करते हैं, बोले रूह मिन अम्र रब्बी, इनसे कहो ये रूह तुम्हारे रब के आलम अम्र की एक चीज है, तुम्हारी समझ में नहीं आती, आलम अम्र की चीजें। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, इसका इल्म तुम लोगों को बहुत कम दिया गया है, और इसका ही दूसरा ट्रांसलेशन ये होता है, इसका इल्म तुम में से बहुत कम लोगों को दिया गया। तो कुछ दुनिया के बहुत से मुसलमान, बहुत बड़ी तादाद, बहुत से नहीं, बस बहुत कम लोग बचेंगे जिन्हें आप इसमें से निकाल के तकरीबन सब, उनको जितना इल्म है अब इस वक्त आपको उससे ज्यादा हो चुका है, ये इतना ही मिल नहीं है। ये जो साफ इन्हें कुरान की आयतों पे गौर करते हैं, ये रूह को हज़रत जिब्रील समझते हैं, रूह की हकीकत को, माहियत को जानते नहीं, रूह के जिसके अंदर जो जान और नफ्स है उसे रूह कहते हैं। तो आपको तो इल्म उनसे ज्यादा हो गया, ओवर में बहुत बड़ी तादाद दुनिया की, बहुत गिने चुने, गिनती की उंगलियों के गिने हुए कुछ लोग होंगे जिनका अब आपसे ज्यादा होगा।